أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Ji, Jazakallah, and good evening and good morning and Assalamu alaikum to everyone. So it's an opportunity again. We are going to have a third round of professional coaching, and as I explained earlier and before the start of the program, we used to tell the opportunity of this professional coaching. The major objective of this professional coaching is to connect opportunity and people. So here we go. Today we are going to have a big opportunity because we are going to welcome our respected guest for today's session is Dr. Ijaz Rashid, who is DVM from US. He did his clinical postgraduate studies from University of Missouri, Columbia, and he's a certified vet stem cell therapy, ex-chief of staff, Benfield Hospital, New Jersey, ex-CEO of Cream Ridge Pet Care Center, New Jersey, USA, and currently he's the CEO of East Windsor Animal Hospital, New Jersey. And I know he has a lot of plumes on his crown, but one of the best thing that he owns is he's the first veterinarian in the USA who introduced cancer vaccine with the Alliance of German in the USA. So, sir, we formally welcome you, and we are thankful for your time. And of course, today's session is very, very important for all those who are going to join us. Before moving forward, I just want to set some house rules so that we should enjoy and we should utilize time in a best manner. First of all, of course, this is the interactive session. We would like to learn from Dr. Ijaz Rashid, who would be sharing us that who he is, what he is doing, and what are the possible opportunities for the veterinary professionals from Pakistan, and how we can work on the cross exchange or cross pollination of information or knowledge among ourselves. And secondly, those who are joining us, those who are watching us, this would be a recorded session, and it's going live on Facebook and YouTube. So you can join us and you can ask your questions. So once you would be asking or submitting your question in the chat box, we will take those questions, and I'm sure our respected guest, Dr. Ijaz, would be answering them. So I'm letting and inviting Dr. Ijaz, sir, please. The screen is yours, and we love to listen from you. And of course, first of all, we want to have an introduction. What was the journey? How you went there, and what we have done over there? What you are doing, and what are the possible opportunities for the veterinary professional? So, welcome, sir, Dr. Ijaz Rashid, sir. First of all, thank you very much, everyone who participated in this very good webinar. And first of all, I would like to say Jashan-e-Azadi Mubarak to all Pakistani friends. And I will special thank you, Dr. Shahzad Naveed Jadoon, who hold this webinar. And hopefully, I think I don't want to waste my time to introduce myself and all these things, because a lot of students, they test me like a private, sir, what is the opportunity in USA and how we come in USA and what the test and how we pass the test and what the test material is available. I think that's the most important thing. Okay, I will let you know very briefly about me, and then we want to move further. I think the question and answer, a lot of students, they text me like a privately also. There's a lot of concern is also going on their education system, and we will discuss like in briefly whatever the time we have available right now. First of all, I graduate US, and after graduation, I work in extension, livestock, but still I'm not satisfied, and I want to every time
in my field, I want to become like a very unique veterinarian. So I'm looking at all the opportunities, and then I see like advertisement in the wildlife. There are the only 3 posts at that time they announced in the wildlife, and we have like a 537 candidate who apply for the job. And at that time, the Public Service Commission, they say we have to conduct the written exam because we cannot hold all the interview. So we go for the written exam, and I get like a second position. Is coming in newspaper, everything. My friends, everybody, they say that how you can get the second position because you are very average student. But this will, I'm telling you truth, for the motivation of all the students. I think this is a blessing of my parent, especially my mother. May Allah rest his soul in peace. She always pray for me, and this all happened due to my mother. She always pray for me. And when I go for the interview, I still remember the first candidate is from from Faisalabad. And when he go for interview, he came outside. We have a Dogar Brother book at that time for general knowledge, and he was sweating. I say, what happened? I say inside, oh my goodness, there's a lot of questions they asking which I don't know. I say, okay. When I go there, I still remember that the Major General Hakeem Arshad Qureshi was sitting there, and he told me that, gentleman, कि मैंने आपके लिए 3 रातें रखी हुई हैं. तो मैं आई वाज सरप्राइज कि वो 3 रातें क्या है. वो पहला उसने मुझे सवाल किया कि क्या आपको पता है कि ये जो शब मराज है. मैं कहा यस. कहता है ये मुमकिन हो सकता है कि इंसान जो भी है, प्रॉफिट जो भी है, ऊपर गया हो, नीचे भी आया हो. वो फिर कहते हैं, हदीस में कहते हैं कि चटकी भी जलती रही. तो मैंने कहा इज पॉसिबल बिकॉज हमारे जो पहले आदम अलैहिस्सलाम ऊपर से नीचे आए और ईसा अलैहिस्सलाम नीचे से ऊपर गए. तो इज एवरीथिंग इज पॉसिबल. God can do anything. Okay. Then he was very surprised, and he was so impressed that he asked me that, did you belong to any other religion or something, like you have religious activity or something? I said no. He said, what does your father do? I said, my father is a police officer. What is your brother? I said, my brother is a police officer. He was very surprised that a person belonged to police family. He was well known about Islamic, all these things. In the beginning, until now, with the grace of God, I pray for 5 times, and I always pray for Allah for the best and best opportunity. And I was selected in wildlife. Then I joined in the Bahawalpur Zoo, where I get like a very good friendship. I have like a very good life at that time. That was a golden opportunity for me. I have very political relationship. I have one of my friend, Mia Asman Abbasi at that time. He was a deputy speaker. He was very close, my friend. One of my friend is like Abbas Gilani, who was a nephew of the, at that time, is Yusuf Raza Gilani. His father was a commissioner. And I make a badminton club there in Bahawalpur Zoo in my residence. And we play together. We have like a session judge, Malik Aslam Metla, senior civil judge, Asghar Ali Shahid, and one of the magistrate, my friend, Chaudhry Shafaq. He is a secretary revenue right now. And other friend is a magistrate, like at that time, the tax, Saeed. So we make a badminton club, we play together. Still, I'm not satisfied because after like 1 or 2 years, I see that is a big problem here also. Like whenever you go to AG office or any other office, you have to pay like a certain amount of commission or something like to pass your bill. I was crying. I say, pray for Allah, please give me some better opportunity where I have does not hold all this responsibility, all these things. Okay. And God gave me the opportunity. I got like a lottery visa and came to USA. And after USA, I worked very hard. I did like an odd job also. Then
I pass all my tests, and after passing the test, I go for clinical postgraduate University Missouri Columbia. And during my study University Missouri Columbia, the Banfield Pet Hospital is a big corporation in the US. And actor Dr. Don came to me. He offered me that we like, because we see your revenue, everything. Your production is very high as compared to the doctor who working 5 years in this hospital. And we want to offer you first time. We never offer anybody who work like a 3 month, and we offer like as a partner or chief of staff. We never offer this offer. And this is the first time we want to go out of the way to offer you this offer. Are you want to accept this offer? I say yes, because that offer is very good for me. At that time, I just started my professional, and they make me like a partner doctor. After that, they gave me like achievement that you have to achieve like a certain thing to become like a certified. After that, 3 months is a period I have to achieve all my target. With the grace of God, I achieve my all the target. They make me like a partner, chief of staff. I work as a 5 year. Then also I work in emergency hospital, crown veterinary specialist. Weekend, there's my night shift, where I learn a lot of things. But after that, I said, no, I have to move further. Then I buy the hospital, Cream Ridge Pet Care Center, very big, almost like a 14,000 square feet. I have 5 doctors working with me. But that's my first experience. And I feel that I'm working very hard, but not getting too much. I feel like so much pressure on my shoulder. The doctors, they are not doing surgery. I have to do the surgery. Even I'm off, sometimes doctor call me that, oh, I cannot do the surgery. Then I have to go back to the hospital. Then I say, okay. I opened a new hospital, East Windsor Animal Hospital. My other doctors say, we want to work there. I said, no. I like to work myself there. I want to grow that hospital. So I want to know that I want to build my own client. I start from zero. And right now, I bring that hospital more than the Cream Ridge Pet Care Center. Myself and my associate also, Dr. Das, is working with me. And I think this is a blessing for Allah. And hopefully, I think I don't want to waste a lot of time. I think let me start with the student had a lot of concern and about where the opportunity in USA and what opportunity we can create in Pakistan. I think we can discuss on this topic. थैंक यू सर. आई गेस आपने बड़े खूबसूरती से जो चीज़ बताई, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू आर क्यूरियस, एंड ऑफ कोर्स फायर इन द belly, and being a curious you can get whatsoever you want to achieve or whatsoever you want to set a target. तो यहाँ पे आज हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स मौजूद हैं. मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने माइक अनम्यूट कर लें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और सर से वो सवाल पूछें जिसकी बेस के ऊपर हम जो है वहाँ पर एडवांटेज ले सकते हैं और यहाँ की जो चीज़ें उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, दे कैन रेज देयर हैंड और वो अपना सवाल पूछ सकते हैं. अच्छा सर, जितनी देर में हमारे पास क्वेश्चन आता है, मेरा एक आपसे सवाल है. ऑफ कोर्स आपने यहाँ से पढ़ा और यहाँ पे आपने जॉब भी करी, और आप क्या समझते हैं कि एज अ प्रोफेशनल, एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, अगर हम अपने करिकुलम को देखते हैं पीछे मुड़ के, तो उसके अंदर क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं जिसकी वजह से हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे अपने झंडे गाड़ सकते हैं? सर डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि जब मैं यूनिवर्सिटी मिज़ोरी कोलंबिया में गया तो यकीन जानिए मैंने अपने आप को जीरो समझा, कि बिल्कुल जीरो. जब मैंने उनकी सारी टेक्निक वगैरह देखी, हर चीज देखी, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार डॉक्टर एजाज तुम तो बिल्कुल जीरो. आई हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट बिकॉज देयर टेक्नोलॉजी एंड आवर पाकिस्तान, मेरा ख्याल जमीन और आसमान का फर्क है. ये मैं आपको बताऊं, उनके यहाँ लेटेस्ट
टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं है। तो मुझे शुरू में काफ़ी मुश्किलात पेश आए। वो चीज़ें मुझे पेश नहीं आनी चाहिए थी अगर हमारा सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पाकिस्तान का अच्छा होता या अप टू मार्क होता, तो हमें वो तकलीफ नहीं आनी चाहिए, मुझे वो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने, ठीक है, मैंने वर्क हार्ड किया, डे एंड नाइट किया। बाज़ का वो मेरी शिफ्ट भी होती थी 48 आवर की, 24 आवर की, आईसीयू में भी। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें की। लेकिन उसके बाद जब आफ्टर 4-5 मंथ मैंने फील किया कि अब मैं डॉक्टर हूँ, पहले मैं डॉक्टर नहीं था। ये मैं आपको हकीकत बताऊं, पाकिस्तान में ये है कि हमारे यहाँ अभी तो स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, बताते हैं हमारे वक्त में 70 स्टूडेंट होते थे। आपने भी पढ़ा होगा, आपके वक्त में भी ज्यादा नहीं होंगे, 70-75 होंगे। अब क्लास है 250 की, 250 की क्लास है, 260 की क्लास है। बाज़ का आपने देखा होगा कि अब 250 की क्लास में टीचर बेचारा क्या करेगा, वो किस किस को पढ़ाएगा, किस 1 घंटे का उसका वो लेक्चर है, उसके बाद 45 मिनट का उसका प्रैक्टिकल है। अब 45 मिनट के अंदर 200 या 250 स्टूडेंट को वो कितना टाइम देगा? एक स्टूडेंट पे कितना टाइम आएगा उसको प्रैक्टिकल करने में? 1 मिनट में नहीं आएगा। और यहाँ पे है कि 5-6 का ग्रुप होता है, 5-6 से ज्यादा ग्रुप नहीं होता, और हर स्टूडेंट को सर्जरी का मौका मिलता है। हर स्टूडेंट जो है एट लीस्ट जब वो ग्रेजुएशन करता है उसने 40 और 50 सर्जरी की होती है। और पाकिस्तान में तो मेरा एक ग्रुप होता है, पहले हमारे वक्त में जो था डॉक्टर मजहर साहब वो टीच करते थे, फिर भी 7 आदमी का ग्रुप होता था, जो एक कुत्ता होता उनके पास, हम सर्जरी करते थे, उसके ऊपर सिखाया जाता था। लेकिन यहाँ पे हर स्टूडेंट को इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो इतना हैंड ऑन प्रैक्टिकल है कि वो जब वो ग्रेजुएट करके निकलता है तो उसको पता होता है कि मैंने सर्जरी कौन कौन सी मुझे आती हैं। अगर कोई वीक है तो उसमें वो जाता नहीं है, वो स्पेशलाइज कर लेता है या दूसरी तरफ चले जाएगा, वो सर्जरी की तरफ नहीं जाएगा, वो इंटरनल मेडिसिन की तरफ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इतने डिपार्टमेंट है ही नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, अब मुझे बताएं कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, कोई कैंसर का कोई है, कोई डॉक्टर नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट है, मेरा हाल कोई पाकिस्तान में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है, कोई नहीं है। इसी तरह सॉफ्ट टिश्यू का सर्जन बोर्ड सर्टिफाइड है, कोई नहीं है। आर्थोपेडिक का सर्जन है, कोई नहीं है। जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? अब हमारी लैब जो है, लोग स्टूडेंट मुझे लैब के बारे में वो भेजते हैं। अब लैब का रिजल्ट जो है, आप ये देख लें कि उन्होंने रेफरेंस वैल्यू रखी हुई है ह्यूमन के बराबर। वो केमिकल यूज कर रहे हैं ह्यूमन के, वो सस्ते पड़ते हैं उनको, क्योंकि वेटरनरी के केमिकल जो महंगे पड़ते हैं वो यूज नहीं कर रहे। अगर वेटरनरी के केमिकल यूज नहीं कर रहे या वेटरनरी के रेफरेंस हम लैब यूज नहीं कर रहे तो रिजल्ट सही एक्यूरेट नहीं आएगा। आप लिवर, आप देखेंगे जब वो लिवर की वैल्यू देखते हैं कि 113 आ गई या 114 आ गई है, वो नॉर्मल है, लेकिन वहां पे लिखा है अब नॉर्मल। आप प्रैक्टिशनर जो है, आम प्रैक्टिशनर, वही समझेगा कि यार इसको लिवर की बीमारी है, इसको हेपेटाइटिस हो गया, फलानी चीज हो गई है, जबकि उसको वो है ही नहीं है। वो पेशेंट की वो डायग्नोस सही तरह हो ही नहीं रहा, पेशेंट का मसला तो कोई दूसरा है। ये सारी चीजें अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। डायग्नोस्टिक नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इतने अच्छे नहीं है कि अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर मैंने कोई अल्ट्रासाउंड का नहीं देखा। मैंने देखा कि स्टूडेंट वगैरह जो प्रैक्टिशनर है वो खुद कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मेरे हॉस्पिटल में मुझे जरूरत नहीं अल्ट्रासाउंड करने की, ये मेरी जॉब नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की जॉब है। मेरी जॉब है उसको बताना कि मुझे अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट चाहिए, मुझे बताएं, इसको गाइड करें कि इस पेशेंट में क्या है, क्या इसमें ट्यूमर है, मास है, नहीं है। उसकी लाइबिलिटी है, वो मुझे बताएगा, वो मुझे गाइड करेगा कि इसके अंदर या ट्यूमर है या ये चीज है या फलान चीज है या इसका कोई और मसला है। ये उसकी हेडेक है, मेरी हेडेक नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने शेयरिंग की हुई है। हर कोई आदमी अपने अपने पैसे बना रहा है, और पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। जब तक ये चीज आएगी नहीं
पाकिस्तान में जॉब क्रिएट नहीं हो सकती। और यही हाल यही है कि पाकिस्तान में लाहौर में अब 100 क्लिनिक है, बड़ी अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन सारे क्लिनिक जो है वो सबके पास एक्सरे नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकते। अभी तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं हुई। पाकिस्तान में पेट का अभी मेरा ख्याल है कि वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। इंशाल्लाह टाइम आएगा कि पाकिस्तान में पेट की बहुत ज़्यादा कदर होगी और वेट की भी कदर होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। आई थिंक सर अगेन जो चीज़ें आपने बताई उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिर उनका प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, और ऑफ कोर्स जो अभी एक नई टर्म है जो कि अभी हम सुन भी रहे हैं और आने वाले टाइम पे इस पे बहुत ज़्यादा फोकस भी होगा, जिसको हम डे वन कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, वो भी है। साथ साथ ये तमाम चीज़ें जिनको अगर हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी जो असातिज़ा हैं या टीचर्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो उनमें से मैं अगर एक अंदाजे के मुताबिक कहूँ 80% या 90% लोग ऐसे हैं जिनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हैं वो कहीं ना कहीं या स्टेट से हैं या यूरोप से हैं या यूके से हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हम खुद पढ़ने जाते हैं, खुद ये चीज़ें देखते हैं और वापस जब हमें मौका मिलता है कि उन चीज़ों को हम रेप्लिकेट करें या उनके मिनिमीज क्रिएट करें, तो वाई वी आर नॉट डूइंग दैट। सो अगेन आई थिंक दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ें हम बाहर देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, हमें वहाँ पे उनको रेप्लिकेट करना चाहिए। और आप जैसे जो सीनियर लोग हैं जिनका प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, उनको हमारी करिकुलम मीटिंग जो कमेटी है उसके अंदर उनका एक रोल होना चाहिए ताकि आप अपनी इनपुट दे सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन विजन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ये नहीं करेंगे और हम रह जाएंगे। और दूसरा, शेयर्ड रिसोर्सेज की आपने बात की कि हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हमें अगर लेट से 100 क्लिनिक्स हैं तो उसमें से हर बंदा सर्जन नहीं बन सकता। उसके अंदर आप जैसे आपने बताया कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं, और इसमें ये होगा कि आप अपने आप को कैनबलाइज नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। सो आई गेस गाइज आप लोगों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो सर बता रहे हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज अपना हाथ रेस करें ताकि हम आपका माइक अनम्यूट कर सकें, या आप अपना माइक खुद अनम्यूट कर लें ताकि हम सर से सवाल पूछें। दूसरी ये बात है कि मैंने यहाँ देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे मेरे एक दोस्त ने क्लास फेलो में फेसबुक पे एक सवाल पूछा मुझसे, तंजिया, कि क्या मुझे भी जॉब मिल सकती है पाकिस्तान में। ठीक है। वो मेरा क्लास फेलो है, बड़ा अच्छा है, प्यारा दोस्त है। तो मैंने भी उसे मजाक में भी ऐसे तंज के साथ उसके जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ जॉब क्रिएट हो सकती है। आप देखें कि स्टूडेंट को हैंड ऑन प्रैक्टिस चाहिए। हमारे यहाँ जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर, जो काम कर रहे हैं ग्रेड 18 और 19 20 के हैं, उनको अगर उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है, अगर वो ज्यादा ट्रेनिंग है, उनके हैंड ऑन प्रैक्टिकल है, वो आए स्टूडेंट को बताएं, जब उनका एक्सपीरियंस जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हमारे जो टीचर है। उनकी वजह यह है कि हमारे टीचर ने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास ज्यादा नहीं है। आपने ये बात की कि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ से यूएसए से आते हैं, कनाडा से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। जो पीएचडी करना है ये एक डिफरेंट चीज है। आप पीएचडी कर लेंगे, लेकिन यहाँ के अगर आप अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि मैं एनिमल को निकाल लूँ या एनिमल को हैंडल करूँ, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है यहाँ पे आप एनिमल को नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, उनको हैंडल नहीं कर सकते अनटिल कि अनलेस के यूनिवर्सिटी आपको टेम्पररी लाइसेंस दे। लेकिन वो लाइसेंस उन्हीं को देती है जिन्होंने फील्ड में काम करना होता है, जिन्होंने प्रैक्टिकल में काम करना होता है। जो पीएचडी करने के लिए जाते हैं स्टूडेंट वगैरह जाते हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल ही होता है, सारा थ्योरेटिकल होता है। उनको प्रैक्टिकल वहाँ लैब के अंदर ही कराया जाता है, बाहर कोई चीज़ नहीं होती। उनका कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि वो सर्जरी में उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो नहीं होगा। इसके लिए टीचरों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इनको टेम्पररी लाइसेंस दे के फील्ड के अंदर इनको काम कराएं, वहाँ पे आईसीयू के अंदर काम कराएं, फिर जाके फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि बाहर के ममालिक में एक लाइसेंस के बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया ये है
कि हम जो लाइसेंस होल्डर हैं वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और जिनको जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए वो बड़े जो है वो वसूख से दबंग होके प्रैक्टिस करते हैं और अपने कार्ड के ऊपर लिखते हैं कि जनाब हम तो जो है ना ब्रीडिंग के भी एक्सपर्ट हैं, हम सर्जरी के भी एक्सपर्ट हैं, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। जो कि 5 साल में हम डिग्री करते हैं वो 3 माह में 6 महीने में वो करके वो ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऑफ कोर्स जो जो बाज़ लोगों से जो ये बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि उनको काम आता है तो ये कंपटीशन है। काम आना कंपटीशन नहीं है, काम के लिए क्वालिफाई करना और फिर उसके लिए प्रॉपर रजिस्टर होना और गाय बगाए आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आई गेस एक अगेन बड़ा मिसिंग एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता वो वार्म अप होंगे सवालों के लिए। दे आर जस्ट मेकिंग आर प्रिपेयरिंग देयर क्वेश्चंस। guys, if you have any question, I guess we have a lot of ladies and gentlemen with us, so those who are interested to ask question please raise their hand so that हम सर से क्वेश्चन पूछ लें, अदरवाइज हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा सर, एक तो हमारे पास एक हम कहते हैं कि हमारे पास एक पहलू ये है कि हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, मैं आई एम मोर स्पेसिफिक टू वेटनरी साइड, उसको हम बेहतर करें। फिर साथ ही साथ हम उसको कपल करें कि हम अपने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करें, और साथ ही साथ जो हमारे जो सीनियर हजरात हैं जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में या ऐसे इदारों में काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस का जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आई टोटली एग्री कि मैं किसी को सीनियर या मैं किसी को अपना उस्ताद तब मानूंगा जब मैं कुछ से उससे कुछ चीज़ सीखूंगा। क्योंकि इस वक्त तो आपको पता है गूगल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा उस्ताद है कि कोई भी बंदा जाके गूगल पे चीज़ें सीख सकता है। लेकिन जो हमारी जो जिसे हम कहते हैं कि एक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो कि आपको सिर्फ उस्ताद दे सकता है, और अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को उसको खुद भी आना उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का हमें नेक्सस डेवलप करना चाहिए कि जहाँ पे आप अपने उस्ताद से इस तरह की प्रैक्टिकल हैंड ऑन चीज़ें सीखें। और मेरा ख्याल है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पर्सनल अपनी एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, और सम टाइम आई फील कर्स कि यार हम बीइंग अ वेटनेरियन, ऑफ कोर्स अगर हम अपना कैरिकुलम देखते हैं तो उसके अंदर हम लाइफ स्टॉक का पोर्शन जो है वो मेजरली 70% या मोर देन दैट होगा जो हम पढ़ते हैं। अगर हम पेट साइड की देखते हैं तो वो बहुत कम पोर्शन है कि जिसपे हम पढ़ते हैं। फिर उसके अलावा पोल्ट्री है या बाकी हमारी चीज़ें हैं। तो अगर हम इस सिलेबाई को अगर हम ऑन द लार्जर एक्सटेंट ऑफ कैनवस इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग इन फील्ड के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा टेलर मेड करें तो मेरा ख्याल है कि वी कैन डू अ गुड जॉब। एटलीस्ट हम अपने बच्चों को डे वन से वो कॉम्पिटेंसीज दे सकते हैं जो उनको जरूरत है। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? मैं सबसे पहले एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो अभी आपने बताई कि हमारे यहाँ जो दूसरे हैं स्टॉक असिस्टेंट जो है, वेटरनरी असिस्टेंट वगैरह जो है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो असल में हमारे यहाँ पे है बोर्ड है AVMA, अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन। पाकिस्तान में है PVMAC। ठीक है। आप बात ये कहनी तो नहीं चाहिए, ये काम PVMAC का है कि इनको ब्लॉक करे, इनके खिलाफ एक्शन ले। और हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वो जानवर को नहीं दे सकता, नहीं प्रैक्टिस कर सकता, नहीं वो दवाई दे सकता, नहीं वो इंजेक्शन लगा सकता। वो सर्जरी को दूर की बात है, वो इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता। अगर किसी हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ, वहाँ पे हूँ, मेरा स्टाफ काम कर रहा है, मेरी नर्सें काम कर रही हैं, वो भी वैक्सीनेशन मेरे बगैर पूछे नहीं दे सकती। हाँ, अगर मेरी सुपरविजन है, क्योंकि अगर कोई ऐसा चीज़ हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरे ऊपर लॉस सूट होगा, मेरी इंश्योरेंस जो है माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस है वो फैक्ट होगी, मेरा लाइसेंस जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे है कि आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे इसको कैद कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी पकड़ी जाए। अगर कोई ऐसा आदमी जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो अरेस्ट हो सकता है, उसको सजा हो सकती है 5 साल की, 10 साल की। उसके अलावा हो सकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान में PVMAC ने मेरा हाल कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, जबकि उनको ये रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि अपने वेटनेरियन को वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। फीस तो वो ले लेते हैं वेटनेरियन से, स्टूडेंट से भी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन में बिल्कुल वो ज़ीरो है। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे एवीएमसी का नाम जिक्र करा।
और मैंने इनका जो बुकलेट वो या इनका जो पूरा एक मजमुआ था वो मैंने आई गॉट दैट एंड आई वाज रीडिंग इट। तो बड़ा डिटेल्ड में हर चीज उसकी बड़ी डिफाइंड है वर्सेस जो हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स जब हम उनको देखते हैं तो वो 3 सफ़ों के डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रॉबेबली शायद उनमें अभी रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि जिस वक्त वो बने थे उस वक्त वेटनरी शायद उस मकाम पे या उस जगह पे नहीं थी। अब खैर हमारे पास नए होराइजन्स डेवलप हुए हैं तो उसके मुताबिक हमें अपडेट करना चाहिए। तो ये जो एवीएमसी है इसमें आपका जब ग्रेजुएट पास आउट होता है तो वो डे 1 से उसके साथ रजिस्टर्ड होता है, या उसको क्वालिफाई करने के लिए कोई टेस्ट या कोई सर्टिफिकेशन लेने के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है? ये क्या तरीकाकार है? थोड़ा सा हमारे सुनने और देखने वाली ऑडियंस को जरा बताएंगे सर इसके बारे में, या एवीएमसी का रोल क्या अगर मैं जेनेरिकली पूछूं तो? एवीएमए का रोल जो होता है कि वो वेटरनेरियन को प्रोटेक्ट करता है, वेटरनरी प्रोफेशन को उसकी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो एवीएमए के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके अंदर उसको फीस नहीं देने पड़ती, रजिस्टर्ड हो लेते हैं, वो रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अगर उसकी फीस भी होगी बड़ी, वो मेरा ख्याल बहुत कम होगी स्टूडेंट के लिए। अव्वल तो फीस है नहीं मेरा ख्याल, मेरे अंदाजे के मुताबिक। जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं, अब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं एवीएमए के साथ, तो एवीएमए फीस उस वक्त लेती है मेंबरशिप से। वो किसी को ये नहीं कहती कि सारे मेंबरशिप मेरे बन जाए, ये एवीएमए नहीं कहती, हमारे फोर्स नहीं करती, किसी को उसने फोर्स नहीं किया। लेकिन हमने एवीएमए की मेंबरशिप रखी है अपने बेनिफिट के लिए कि हमने माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस लेनी है, हमने वो चीज़ें लेनी है। एवीएमए का मतलब ये है पाकिस्तान या यूएसए में कि वेटनरी प्रोफेशनल को मोस्टली उनको प्रोटेक्ट करना, हमारे वेटनरियन को प्रोटेक्शन करना, उनके खिलाफ कोई ऐसा जो लॉ बन रहे उन लॉ के खिलाफ वो फाइट करना। ये एवीएमए का ज़्यादातर प्रिंसिपल है। एवीएमए इस तरह नहीं करती कि हर स्टूडेंट ये कहे कि हर स्टूडेंट इसके अंदर रजिस्टर करे, नहीं, एवीएमए ने कभी फोर्स नहीं किया। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर उसने रजिस्ट्रेशन की है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके बाद लाइसेंस की फीस डिफरेंट है, हर स्टेट की फीस है। मैं अपने स्टेट में न्यू जर्सी स्टेट में हूँ, मैं न्यू जर्सी स्टेट की फीस पे करता हूँ। मैं एवीएमए की मेंबर, हर साल की मेंबरशिप होती है वो मैं पे करता हूँ। इसी तरह मेरी माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस है, मैं उसको पे करता हूँ। और हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग उनके चार्जेस हैं, हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। यहाँ पे हर चीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। ये नहीं है कि एवीएमए ने सारी चीज़ें अपने पास रखी हैं, ये नहीं, सारी पावर अपने पास नहीं रखती एवीएमए। यहाँ बोर्ड है, न्यू जर्सी का बोर्ड सेपरेट है, पेंसिल्वेनिया का बोर्ड सेपरेट है, उनके अपने अपने इख्तियारात है। एवीएमए उस बोर्ड के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मेरे लाइसेंस का अगर कोई मसला पड़ता है तो मेरा न्यू जर्सी बोर्ड मुझसे पूछेगा, एवीएमए नहीं पूछे। ये That's पावर को डिवाइड किया हुआ है। that's something I think a great sharing sir, क्योंकि probably we need that, क्योंकि 18th amendment के बाद जहाँ पे तमाम सूबे अपना ऑटोनोमस पावर्स रखते हैं, तो उसके अंदर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे डिफरेंट सूबों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट वेटनरी प्रोफेशनल्स हैं, तो वहाँ पे हमें पावर्स को स्प्लिट कर देना चाहिए और फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हमें काम करना चाहिए। हमारे दोस्त मोहम्मद उस्मान अमानत साहब ने हाथ खड़ा किया। मोहम्मद उस्मान का जो माइक है वो अनम्यूट किया जाए प्लीज। Assalamu sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Yes sir, I am Muhammad Usman from sir UAS and I am still an undergrad student from DVM. तो सर मेरा क्वेश्चन ये कि ये सर अगर मैं अबॉर्ड में आके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो सर मुझे यानी कि अगर लेट्स सपोज मैं अमेरिका में आना चाहता हूँ तो मुझे किन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं अमेरिका में आके यानी कि क्लिनिक्स के अंदर सर स्कॉलरशिप अवेल कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का यानी कि हमारे पास है, लाइक फुल ब्राइट है जो कि सर रिसर्च के अंदर हमें देती है स्कॉलरशिप, लेकिन सर क्लिनिक के अंदर हमें आने के लिए क्या स्कॉलरशिप हमें अवेल कर सकते हैं और क्या इनके मुझे टेस्ट प्रोसीजर करना पड़ेगा? क्लिनिक में आने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और या उनके यहाँ पे लाइसेंस का ये है कि 4 स्टेप हैं यहाँ पे। अपना नेवली के नॉर्थ अमेरिकन वेटनरी ग्रेजुएट कमीशन जो बनाया हुआ है उन्होंने, इसके 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आपने रजिस्टर्ड कराना एवीएमए के साथ।
आपने वो देखेंगे कि आपका जो यहाँ से आपने ग्रेजुएट किया है वो यूनिवर्सिटी उनके साथ एफिलिएशन है, उनके साथ अटैचमेंट है, वो उसके बाद आपको एक्सेप्ट करेगी, वो लेटर भेजेगी। दूसरा वो सेकंड स्टेप होगा आपका इंग्लिश का। आपने इंग्लिश का स्टेप पास करना है, वो यहाँ पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, किसी जगह से भी आप कर सकते हैं। टॉफल का है, दूसरा है, जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके सर्टन नंबर हैं, वो नंबर आपने अचीव करने हैं। अगर वो नंबर अचीव नहीं करते तो वो टेस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी AVM में। थर्ड स्टेप जो है वो बेसिक है, बेसिक टेस्ट है, उसके अंदर 225 क्वेश्चन है वो पूछते हैं, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन जो है वो वैल्यूट करते हैं, 25 क्वेश्चन को वो वैल्यूट नहीं करते। वो वैसे क्वेश्चन होते हैं, वो स्टूडेंट को देखने के लिए, पढ़ने के लिए टेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, उनके नंबर कोई नहीं होते। वो पास करने के बाद फिर थर्ड आपका टेस्ट होगा नेवली का, वो 7.5 आवर का टेस्ट है, ऑलमोस्ट 8 आवर का, 45 मिनट की उसके अंदर ब्रेक होती है, और 360 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें 5 और 6 मेरा ख्याल है सेशन है उसके। उसमें 300 क्वेश्चन जो है उसकी एवेल्यूशन होती है, 60 क्वेश्चन जो होते हैं उसकी एवेल्यूशन नहीं होती। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप टेस्ट देने जाते हैं, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि सेशन होता है 1 घंटे का एक सेशन होता है, 55 मिनट का वो टाइम देते हैं, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा देते हैं, 60 मिनट देते हैं वो। अपने 60 मिनट के अंदर तकरीबन आपने 55 क्वेश्चन आंसर करना, 55 और 60 क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, आप वहां पे स्टक ना करें, उसको मूव ऑन कर दें, उसको रिव्यू के लिए रख लें। जाकर अगर आपके पास टाइम है तो वो क्वेश्चन जाके दोबारा फिर देख सकते हैं, उसको दोबारा फिर चेक कर सकते हैं। इसके लिए स्टडी के लिए आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, वेट प्रेप अवेलेबल है। हमारे यहाँ वक्त में तो नहीं था, अभी ऑनलाइन है। ये बहुत अच्छी साइट है, स्टूडेंट इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं, सिर्फ इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वीज़ा लेना आसानी होगी। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है, और वीज़े के बाद आप यहाँ आके CPA का एग्ज़ाम है, क्लिनिकल एग्ज़ाम है, वो आपको देना पड़ेगा, और वो टेस्ट पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहें, जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, वो आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। जी, आई गेस सर ने बड़ी तफसील से तमाम स्टेप बताए हैं। जो लोग हमारे दोस्त सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन तमाम चीज़ों के प्रॉपर नोट्स बना लें, ताकि इनको आप स्टेप बाय स्टेप जो है उनको फॉलो करें। सो एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन प्लीज? अच्छा सर, जब तक हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनमें से कोई बंदा हाथ खड़ा करता है, एक सवाल ये कि ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया कि आपके टाइम पे उस वक्त इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, जैसे अब अगर हम ये जो वेट प्रेप वेबसाइट या ऑनलाइन प्रिपरेशन की बात करते हैं या बाकी चीज़ें बात करते हैं, क्या हम अपने जो यूनिवर्सिटी जो करिकुलम है इसके अंदर, क्या फाइनल ईयर के अंदर कोई कुछ क्रेडिट आवर का ऐसा कोर्स या ऐसा सब्जेक्ट रख सकते हैं कि जिसमें जो लोग इफ दे वांट टू गो अब्रॉड और ये बाकी जो है ममालिक में जाना चाहें, तो उनके लिए ऐसा प्रिपरेशन आप सजेस्ट करते हैं? पहली बात यह है कि एक बात मैं आपको डॉक्टर साहब ये बताऊं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है, मसलन आप एक मिसाल ले लें US की, यहाँ पेट केयर सेंटर है, हमारे यहाँ भी डॉग सेंटर होता था। डॉक्टर एहतशाम साहब से वहाँ जब हम पढ़ते थे, तो जब हम जाया करते थे, यकीन जाने हम चोरी छुपे नुस्खे चुराया करते थे, नहीं बताते थे। क्यों? वो समझते ये प्रैक्टिस ना खोल लें, ये ना कर लें। ये कंसेप्ट ये नहीं खत्म हो रहा पाकिस्तान में, और अभी तक खत्म नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो पेट केयर सेंटर है,
ये टीचिंग हॉस्पिटल है, ये स्टूडेंट की उनकी ही ये जायदाद है जिस पे ये काबज किए हुए हैं। ये स्टूडेंट के लिए है, ये बनाया गया। स्टूडेंट पे करते हैं, फीस पे करते हैं। आप स्टूडेंट को अलाउ ही नहीं करते वहां पे जाने के लिए। स्टूडेंट बेचारा वो परमिशन लेने के लिए और बानी साहब का मैंने इंटरव्यू पढ़ा कि मेरे बड़ा प्रेशर है स्टूडेंट का कि वो पेट केयर सेंटर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो कौन सा प्रेशर है? ये तो है ही स्टूडेंट के लिए है। आपके ऊपर कौन सा प्रेशर है? आप इस सीट पे बैठे हैं, आप तो फैसिलिटेट करें स्टूडेंट को, उनको कहें जाएं, रात दिन को जाएं, यहाँ पे जाकर ऑब्जर्व करें, देखें। जब तक स्टूडेंट वहां पे जाएगा नहीं, उनकी ड्यूटी नहीं लगेंगी, उनकी शिफ्ट नहीं लगेंगी, तो वो 24 आवर पेट केयर सेंटर जो खुला है वो किस लिए खुला है? वो स्टूडेंट के लिए है। अगर स्टूडेंट को वहां जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो जाएगा नहीं है, और फिर उसको हाउस जॉब के लिए आप बाहर भेज देंगे, दूसरे क्लिनिक पे जाएंगे, फलाने जगह पे जाएंगे, वो क्यों बेचारे फिर रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं? जबकि पेट केयर सेंटर है, 24 आवर खुला हुआ है, वहां केस भी आ रहे हैं, या केस नहीं आ रहे तो फिर तो ठीक है। अब स्टूडेंट को वहां पे मौका मैक्सिमम देना चाहिए। और टीचर जो वहां पे बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, खुदारा उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये अपनी जायदाद ना समझे, ये मत समझे कि हमारे क्लिनिक बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ये स्टूडेंट जो सीखेंगे। ये नहीं, ये आपके क्लिनिक को और ज्यादा फायदा होगा जब ये स्टूडेंट जब ये क्वालिफाई करेगा, वो आपके क्लिनिक पे भी काम करेंगे। जैसे जैसे ये ग्रो होगा, वेट प्रोफेशन ग्रो होगा, हर हॉस्पिटल में 2-3 डॉक्टरों की जरूरत होगी। इसको ये वो अभी तक वो ये इस चीज को समझते नहीं है, लेकिन जब तक वो समझेंगे उस वक्त तक हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट कर देंगे या वो फील्ड में होंगे। फिर वो स्टाफ सिस्टम वगैरह उनके ऊपर हैवी होगा, उनको पता ही नहीं होगा। हमारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कैथेटर कैसे डालना है, आईवी इंजेक्शन कैसे लगाना है, तो वो फील्ड में जाके उनको परेशानी होगी। सबसे पहले तो ये चीजें जो है ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर स्टूडेंट को जाने का मौका दिया जाए, उनके अंदर देखें वो क्या कर रहे हैं। जिस तरह रिप्रोडक्शन का है, एआई का है, इसी तरह हमारे यहाँ स्टूडेंट को एक स्टूडेंट को कितना मौका मिलता होगा एआई करने का, परफॉर्म करने का, या उसको ओवरी चेक करने का, यूट्रस चेक करने का, उसको तो पता ही नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड करने का ये एक्सपीरियंस तब भी आएगा जब वो एटलीस्ट 15 या 20 प्रोसीजर कर लेगा, तब जाके वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे स्टूडेंट को वो प्रोफेसर अल्ट्रासाउंड से बताते हैं कि ये है, ये है, ये है, फलाना है। अब 20-25 स्टूडेंट खड़े होंगे, अब तो मेरा 250 है, उसके अंदर तो मेरा किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि है क्या। जब तक अपने हाथ से कोई काम नहीं कर लेता उस वक्त तक किसी को कोई एक्सपीरियंस ज्यादा होता नहीं है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमारे जो टीचर्स हैं, स्पेशली जो आपने ये जो पेट सेंटर की बात की, यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी या ये जो इदारा है, ये जो है वो स्टूडेंट्स की ही प्रॉपर्टी है, और ये लोग वहाँ सीखने आए। अगर ये लोग सीख के नहीं निकलेंगे तो ऑफ कोर्स वो कैसे सीखेंगे? और आपने जैसे ये भी बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर आप किसी एक प्रोसीजर को सिखाते हैं, अगर हमने 4 ग्रुप्स में भी बंदे तकसीम किए हैं, तो 15 दफा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक चीज को वो 15 दफा अपने हाथ से कर सके। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी जो है ना वो डेवलप नहीं होने दे रही। इस तरफ हमें सीरियसली देखना चाहिए। हमारे साथ हाफिज मोहम्मद शाकिर साहब हैं। आई रिक्वेस्ट हाफिज साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इजाज साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने लास्ट टाइम एक लेक्चर हमारे साथ शेयर किए थे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी। और अभी जो बात कर रहे थे सर पेट प्रैक्टिस के हवाले से, तो सबसे पहले तो जो डीवीएम का करिकुलम है उसमें सर काफ़ी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक जो पेट का कोर्स है वो कोई नहीं है हमारे इस करंट जो करिकुलम चल रहा है इसके अंदर। वो भी सर एक क्लिनिक है 6ठे सेमेस्टर में, वो भी आधा हमें पढ़ाया जाता है, यानी आधा सर्जरी का क्लिनिक होता है और हाफ जो होता है ना वो पेट का। नहीं 2 दिन हम जाते हैं सर्जरी क्लिनिक पे और बमुश्किल हम कोई चीज़ें ना ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो ये पेट की प्रैक्टिस है, एक मेजर प्रैक्टिस है, इसके हवाले से हमें बिल्कुल इसकी तरफ एक्सपोजर नहीं दिया जाता। और दूसरी बात सर, जब भी हमारे क्लिनिक्स के सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं,
लाइक 7वें 8वें 9वें सेमेस्टर में, तो उसमें 7 प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर काफ़ी बर्डन डालते हैं, लाइक एनिमल ब्रीडिंग जेनेटिक्स, जिसका मेरे ख्याल में इसको शुरू वाले सेमेस्टर में पढ़ा देनी चाहिए। और कुछ ऐसे और सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होते हैं, जो कि हमारे क्लिनिकल वर्क में उनको करने में काफ़ी इंटरफेयर करते हैं। अफसर, थैंक यू वेरी मच आपके सवाल का। ये बात ठीक है, ये जो आपने बात बताई है इसमें 100% ट्रू है कि आप लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा हो नहीं रहा। लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल है, पेट केयर सेंटर है, उसके अंदर एक ICU का शोबा बनना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट का, जिसमें पे जितने भी जो ज़्यादा हैं उनको रखा जाए, वहाँ पे स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई जाए, और जो स्टाफ है, जो प्रोफेसर हैं यहाँ पे, वो इतने हाईली क्वालिफाइड हों कि वो स्टूडेंट के साथ राउंड करें। 3-4 दफ़ा उनका राउंड होना चाहिए और स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। ये केस क्यों आया, इसकी क्या वजह थी, क्या इसके डायग्नोस्टिक थे, क्या इसका ब्लड वर्क था, और क्या इसका आउटपुट निकला, क्या इसको इलाज हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या इसका सर्जरी करनी है, क्या करनी है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, हमारे स्टूडेंट नहीं सीखेंगे। अभी यहाँ USA में जो होता है कि जब मेरी ICU में जब शिफ्ट होती थी, तो हमारे 2 राउंड होते थे, और दोनों राउंड में प्रोफेसर होते थे, रेजिडेंट होते थे, इंटर्न होते थे। वो प्रोफेसर जो होता था, उसका इतना नॉलेज होता था कि वो चीज़ें ऐसी होती थी कि बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलती थी। वो खुद कहते थे कि ये चीज़ जो मैंने आपको बता दी बुक्स के अंदर भी नहीं है। और इस डिजीज को जब वो केस जब आपको डिस्कस करता था, वो पूछता नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सारे स्टूडेंट बस हो जाती, कहते सर दैट्स इट, हमने तो ऑनलाइन पढ़ाया, ये किया, फलाना किया, इससे ज्यादा हमें पता नहीं है। तो वो आगे मुस्कुराते थे, हंसते थे, कहते दैट्स इट, इतना ही है। वो फिर वो जब वो शुरू होता था प्रोफेसर जो कई ऐसे प्रोफेसर थे हमारे यूनिवर्सिटी मिजूरी कोलंबिया में, 2 बोर्ड सर्टिफाइड थे। जब वो चीजें बताते थे, यकीन जानो उसमें एक इतना मजा भी आता था। वो कहते थे कि यार ये डिजीज जो है, इसका ब्लड वर्क देख के मैं बता देता हूं कि इसमें है क्या, और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम देगी। जब आपके सामने ब्लड वर्क आएगा, आप ये देखेंगे और फौरी तौर पे उसके आप फोकस करेंगे, यार ये डिजीज है, और वो 100% वही निकलेगी जब आप डायग्नोस्टिक करेंगे। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो ना, ये अभी पाकिस्तान में अभी नहीं आ रही। अभी राउंड को दूर की बात है, प्रोफेसर वहाँ वो जाने नहीं देते स्टूडेंट को सीखने के लिए। राउंड तो बहुत दूर की बात रह गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि जो टेस्ट जो है, जो नेवली टेस्ट है, उसमें 50 और 60% जो है वो डॉग एंड कैट के सवाल के बारे में पूछा जाता है। एक वाइन है, हमारे यहाँ एक वाइन का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। एक वाइन का यहाँ एक अलहदा शोबा है। एक वाइन के डॉक्टर जो हैं, जो अपने को बड़े हाईली क्वालिफाइड समझते हैं यहाँ USA में, इनका एक अलहदा एक शोबा है, इनका अलहदा एक डिपार्टमेंट है, राउंड है, लार्ज एनिमल का एक अलहदा है। लार्ज एनिमल की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, USA में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर वो सर्च करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है लार्ज एनिमल में, उसको आसानी के साथ एडमिशन मिलेगा, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी कैपेसिटी है, अगर वो उसके अंदर रेज़्यूमे उसका अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस है, तो लार्ज एनिमल के अंदर उसको इजीली जॉब मिल सकती है। लार्ज एनिमल यहाँ बहुत टफ जॉब है। लेकिन पेट केयर में, पेट में, डॉग एंड कैट में काफ़ी कंपटीशन है, इक्वाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें ज़रा टफ कंपटीशन आ जाता है। जी आई गेस अगेन इसमें अलमिया सर ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये तमाम लोगों को मालूम भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि जब चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो उनका सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम चीज़ें अंडरलाइन है, ये तमाम लोगों को पता है कि ये हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके सोल्यूशन की तरफ कोई भी काम नहीं कर रहा। और जितने स्टूडेंट हम सालों साल पास आउट करवा रहे हैं, हम कभी उनके बारे में ये नहीं सोच रहे कि ये बेचारे जाएंगे कहाँ पे और करेंगे क्या। क्योंकि जब तक आपकी अपना इंस्टीट्यूट उनको प्रॉपर ऑन नहीं करेगा, प्रॉपर तैयार नहीं करेगा या उनकी रहनुमाई नहीं करेगा, तो हम किसकी तरफ देखेंगे, किससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं ये तमाम जितने भी लोग जो इस्तात रखते हैं या जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर या एकेडेमिया के अंदर जिनके पास पावर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जितनी चीज़ें आप डॉक्टर इजाज के मुंह से सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और ये सारी डूएबल है। अगर ये डूएबल नहीं है तो आप हर साल इतने लोगों का इंटेक क्यों ले रहे हैं? क्या आपने डिवाइड करा है कि हमारे पास पेट के लिए कितने लोग हैं, या हमारा जो जो कोर्स वर्क है उसको हमने उस तरह डिवाइड किया है, या अपने स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है उसको सपोर्ट प्रैक्टिकल कैसे हम सपोर्ट करें? तो मेरा ख्याल है देयर आर मल्टीपल एरिनाज जिन पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि हम सिर्फ चाहिए के ऊपर जोर दे रहे हैं, कर नहीं रहे। तो करना किसने, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो ताकत में बैठे हैं वो समझते हैं जो हो रहा है वो बेहतरीन है और वो जो कर चुके हैं उससे आला हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये जो लिबादा है अपने ऊपर से उतारना पड़ेगा कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और जो चीज़ें हम किसी से भी सीखते हैं और वो एज अ कम्युनिटी या प्रोफेशनल के लिए बेहतर है तो हमें वो करनी चाहिए। तो गाइज अगेन, आप लोगों का अगर कोई सवाल क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। दिस इज़ अ फोरम, ये मौका है, आप अपनी चीज़ें पूछें ताकि हम इनको प्रॉपरली ऑन रिकॉर्ड पे लेके आएँ। जी शाकिर भाई, अगेन आपका हाफिज साहब सवाल है, प्लीज़ बताएं। जी सर, कर लेते हैं नेवली के बाद जब वीज़ा मिल जाता है अमेरिका का, तो वहाँ पर हम एज अ वीए प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग सीपी एग्जाम। तो क्या ये सच है सर? तो इसके लिए ड्यूरेशन कितना है कि हम वो प्रैक्टिस मिनिमम इतने ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, देन हम सीपी के लिए अपेयर हों? क्योंकि हमारी पाकिस्तान में रहकर वो लेवल की प्रैक्टिस नहीं होती कि हम सीपी के लिए क्वालिफाई हों वहां पर जाके। नहीं, आप साहब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये कंसेप्ट तो निकालते हैं। हाँ, अगर आपने टेस्ट पास कर लिए हैं तो क्लिनिक है, हमारे जो क्लिनिक है आ, आ, उसमें ज्यादातर जो पाकिस्तानी क्लिनिक है वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। दूसरे क्लिनिक पे भी जॉब मिल सकती है जब वो देखते हैं कि स्टूडेंट ने नेवली टेस्ट वगैरह पास कर लिया है। वो एज ए टेक्नीशियन आपको रखेंगे, एज ए टेक रखेंगे। जैसे जहाँ पे स्टाफ असिस्टेंट होता है, वेटनरी असिस्टेंट होता है, वो एज ए वो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन वो काम भी जब आप सीखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप खड़े हैं, वहां पे उनके टेक्नीशियन कहाँ पे खड़े हैं। आपको सारा तरीका सिखाएंगे, सारी चीजें आपको पता चलेगा कैसे पेशेंट को हैंडल करते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे उसकी डायग्नोज करते हैं। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करूं, वो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकते आप। इनके लॉ में वो नहीं है, वो परमिशन कभी नहीं देंगे, वो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये ना एक मौका मिलेगा सीखने का, एज ए टेक असिस्टेंट, एज ए वेटनरी असिस्टेंट आपको मौका जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। Okay, जी, may I request to Asfa, if you have a question, please आप बता, अपना क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर। इजाज़त, पहले तो वो एविडेंस बेस्ड वीडियोस शेयर की थी ग्रुप में, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। और सेकंड ये कि सर, मे आई रिक्वेस्ट सम मींस I am graduated from UAS and now currently doing the MPhil in Meat Science and Technology. But though we are doctors, so our society members always ask for us what's different questions related to the practice. So I request, may I request you to, can we create a WhatsApp group so that in case we can discuss the case discussion, and twice a month maybe we have a meeting also. So if you are available, or some other means colleagues who can mentor our students, graduate students. And secondly, can you explain or highlight some externship opportunities
for abroad. That's all from my side. जहाँ तक आपके व्हाट्सएप के ग्रुप का है कि आप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम का मसला हो जाता है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बिजी लाइफ है। बाज़ का होता है मुझे काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं, प्राइवेट पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। बाज़ का होता है कि इन टाइम जवाब देता हूँ, बाज़ का होता है कि काफ़ी देर के बाद जवाब देता हूँ। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है, दैट्स मोस्ट वेलकम, आप क्रिएट करें। जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितनी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। दूसरा आपका सवाल है कि एक्सटर्नरशिप का, हाँ आपको मिल सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लाइसेंस वगैरह कर रही हैं, अगर आप लाइसेंस वगैरह प्रिपेयर कर रही हैं, आपने टेस्ट वगैरह पास कर लिए हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। आपको एक्सटर्नरशिप भी मिल जाएगी, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने फुल प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए लाइसेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। Okay. So I guess again these are the good options. Of course we have to care कि जी के time matching और जो busy schedules है उसको देखते हुए ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं. Anyone else has a question, please? ओके सर, जैसे कि हम लोग ऑलमोस्ट हमने बेसिक से चीज़ें कवर करी कि क्या क्या हमारे लूप होल्स हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। स्पेशली हमारा टारगेट या हमारी ऑडियंस हमारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि दे हैव टू लीड। अगर इनको प्रॉपर मोटिवेट किया जाए, क्योंकि मैं जब भी आपको देखता हूँ, मैंने आपकी मैं बीइंग अ फेसबुक फ्रेंड, मैंने आपका एक चीज़ देखा कि यू आर वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ जो हमारी जो सोशल मोबिलाइजेशन, ये सोशल कम्युनिटी के साथ आप जो काम कर रहे होते हैं यूएसए के अंदर, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप वहाँ पे भी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे इकट्ठे हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने वहाँ पे अपनी भी कोई एसोसिएशन बनाई हुई है जिसका पीरियोडिकली आपकी गेट टुगेदर्स होती हैं। तो जो चीज़ अगर हम बैक टू पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, तो ये यहाँ पे छोटी छोटी आपस के अंदर जो मीटिंग्स, डिस्कशंस या इस तरह के फोरम्स का भी फुकदान है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसी चीजें जो एज अ प्रोफेशनल लाइफ हम बैक एंड पाकिस्तान को के प्रोफेशनल्स को एडवाइस कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे वो अडॉप्ट करें, और जो आपस में जो एक जो आपके रवाबत हैं या आपस में जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाए? डॉक्टर साहब, पहले तो बात यह है कि आप लोगों ने मैं कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया, अभी इकट्ठे कर रहे हैं सारे वेटनेरियन को। ये एक गैप है, इस गैप को आप फिल कर रहे हैं, चाहे इसमें मेरा हाल दूसरे ग्रुप वगैरह में भी अच्छे फील ना करें, लेकिन ये गैप शुरू से चला आ रहा है। इस गैप को जब आप फिल करना शुरू कर दिया है, आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, तो ज़ाहिर है कि लोग आपके खिलाफ ही कोई बातें करेंगे। ये लेग पुलिंग पाकिस्तान में और अमेरिका में, एवरीवेयर, हर कंट्री में ये पाकिस्तानियों का एक बुनियादी एक असूल है। मैंने देखा है कि उन्होंने खुद अच्छा काम नहीं करना, लेकिन लेग पुलिंग जरूर करनी। वो कोई अच्छा काम करेगा ना, उसको कहेंगे यार इसका कोई ना कोई इसके अंदर मफाद है, इसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी है, लेकिन वो अच्छा काम करने के बावजूद भी उसको बदनाम कर देंगे। यही एक बड़ी खूबी होती है। लेकिन आप जो अपनी जो ट्राई कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो स्ट्रगल जो है, इंशाल्लाह एक दिन जरूर आप देखेंगे कि स्टूडेंट को, वेटरनरी प्रोफेशनल को वहां पे फायदा जरूर पहुंचेगा, और ये हो रहा है। जी, मैं आई एम थैंकफुल फॉर अप्रिसिएशन सर। आई गेस दिस इज व्हाट, हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमें बीइंग अ वेटनेरियन वन फैमिली के तौर पे काम करना, सबको क्लोज आना। जब तक हम मिल के अपना जो वन पेज एजेंडा नहीं बनाएंगे, और तब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमने किसको क्या कहना है और किससे क्या हासिल करना है। ऑफ कोर्स जिनसे हमने कहना है वो भी हमारे अपने, और इनसे हमने लेनी है ये चीजें, क्योंकि अब जो है ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो फ्लक्स
पर ईयर पास आउट हो रहा है वो लोग ज्यादा जो है वो टफ टाइम देख रहे हैं और उनके हालात बड़े टफ हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे सीनियर की गाइडेंस और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स और हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, जो दाएं बाएं के हमारे दोस्त यार हैं, हम अपना जो एक एजेंडा है उसके ऊपर जो है वो कंसिस्टेंटली रिजिलियंट होके काम करेंगे और आई एम श्योर विल गेट द सक्सेस। हमारे पास इम्तियाज साहब हैं, इन्होंने हाथ खड़ा किया है। मैं इम्तियाज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सवाल पूछें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इजाज साहब आपको इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने जिंदगी के कीमती लम्हात में से हमारे लिए वक्त निकाला। साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ह्यूमन साइड के जो हमारे डॉक्टर हैं, जो लोग यहाँ पे बैठकर यूएसए में करते हैं पाकिस्तान में, तो उनको जहाँ पे उनकी एसोसिएशन है अमेरिका में अपना, तो वो अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स को मतलब सपोर्ट करती है उनको इन टर्म्स ऑफ उनको प्रोविजन ऑफ एजुकेशन मटेरियल। तो क्या ऐसा हमारी भी इस तरह की एसोसिएशन है जो यहाँ पे अपने वेट्स को जो प्रमोट करें? डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो एसोसिएशन है वो मैंने बनाई थी, नेपवा नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानी वेटरनरी एसोसिएशन मैंने बनाई थी, लेकिन कुछ ऐसा मसला पैदा हुआ कि उसको बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने दूसरे लोगों को मैंने दे दी कि आप चलाएं। जैसे कि बहुत सारी लेग पुलिंग थी इसके अंदर भी। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना, उनके लिए सारा कुछ यानी कि उनको बताना कि टेस्ट कैसे पास करना है, टेस्ट मटेरियल वगैरह हर चीज़। ये हमारा सबसे पहला स्टेप था। और जो हमारे पास जो अब भी नेपवा है उनका भी ये पहला स्टेप होना चाहिए और ये हमने डिस्कस करते हैं। और जो अभी भी नेपवा में जो हमारे हैं दूसरे हैं, प्रेसिडेंट है आमर है, वो मेरा दोस्त है, सभी मेरे दोस्त हैं। ये इनका पहला स्टेप यही है कि स्टूडेंट को अवेयरनेस करना, उनको फैसिलिटेट करना। कोई पाकिस्तान से कोई भी आता है, वेटनेरियन आता है, उनको प्रॉपर गाइड करना, ये बड़ी बात होती है। जब भी कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से आता है तो यहाँ प्रॉपर गाइड नहीं मिलती। अगर उनको प्रॉपर गाइड मिलती है तो वो अपना लाइसेंस इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वो ले लेते हैं। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी तो ऑनलाइन है, वेट प्रेप है, वेट प्रेप पे आप तैयारी करें। यहाँ के स्टूडेंट भी वहाँ पे तैयारी करते हैं, आप भी वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। उनकी फीस है, फीस दे के आप घर बैठे आप पाकिस्तान में तैयारी कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है, स्टडी का कोई मसला नहीं है ब्रा। आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे सर ने भी बताया कि ऐसे जो सीनियर लोग हैं जो अब इस पोजीशन में कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, तो वो बैक एंड पे ऐसी एसोसिएशन बना के आने वाले तमाम लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और बैक एंड पे जो लोग इन्फॉर्मेशन चाहे उनको भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा संजीदा सवाल ये है कि चलें वहाँ पे तो हमारे जो लोग होंगे शायद वो हंड्रेड्स में हो या थाउजेंड्स में हो, प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो यहाँ पे इतना बड़ा आपका हजूम है, इतने ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे जो अवेलेबल हमारी एसोसिएशंस हैं, जो इदारे हैं, वो भी बिल्कुल खामोश हैं, उनकी तरफ से भी कोई गाइडेंस नहीं है। तो हमें ये भी चाहिए कि इन जो हमारे मौजूदा इदारे जो इस वक्त बने इस इमा पे, बने इस बेस पे थे कि उन्होंने वेटनरी की वेलफेयर और वेटनरी की बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो हमारा उनसे भी एक सवाल है कि क्या वो अपने काम या अपने जो फ्राइज हैं या जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने उस वक्त जो थे अपने एजेंडे के अंदर शामिल किए थे, क्या उन पे अमल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको करेक्ट करना है। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास लोकल भी बहुत हैं और हमारे पास इंटरनेशनल भी हैं, लेकिन हमने तमाम चीज़ों को गाए बगाए बेहतर भी करना है। मेरा ख्याल है कि गाइस आप लोगों ने अपने जो सवालात थे, ऑफ कोर्स ये सवालात का सिलसिला तो ऐसे है कि आपको गाए बगाए आते रहेंगे, लेकिन क्योंकि सर का वक्त भी कीमती है तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा 1 घंटे का स्केड्यूल सेशन था, तो ऑलरेडी वी आर 6 मिनट अबव फ्रॉम द सेट टाइम। सो मैं यहाँ पे Alert from exchange password required. मैं यहाँ पे सर का अगेन शुक्रिया अदा करूंगा। वी आर ग्रेटफुल सर।
आप जैसे सीनियर्स और आप जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी गाइडेंस और अगर उनकी रहनुमाई हमारे साथ रहे तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स के अंदर बहुत टैलेंट है। कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि हमारे यहाँ पे मेंटोरिंग और हमारे यहाँ पे कोचिंग नहीं है। अगर हम इन बच्चों को सिर्फ डायरेक्शन दे दें, इनके अंदर काम करने का जज्बा भी है, दे वांट टू कम्पीट, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू परफॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो इस चीज़ का ख्याल, इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि इन बच्चों को हमने क्या देना है। कोई भी बच्चा अगर अपने तई कुछ करना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करने के बजाय उसके रास्तों में रोड़े अटकाते हैं। और ये एक ऐसा वतीरा बन चुका है, जैसे कि आपने भी बहुत सी चीज़ों में हाईलाइट किया कि हमें इसको बेहतर करना है। हमने उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि जो इस वक्त कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ इतना करें कि अपने यंगस्टर्स को गाइडेंस और प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर पाथ के ऊपर डाल दें। बाकी जो जितनी मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको नवाजेगा। और मेरी यंगस्टर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी क्यूरियस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और डिटरमिन्ड होना चाहिए। जिंदगी के अंदर बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जहाँ पे बंदा डिप्रेस भी हो सकता है, जहाँ पे फेलियर का भी सामना हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें एज अ फाइटर काम करना है। हमने जो चीज़ अपने लिए सोची है, जो टारगेट सेट किया है, उसके लिए जाना है। और उसके लिए आपकी नीयत का जो है ना वो खालिस होना और उस डायरेक्शन में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों ने जो सवालात किए उनको जवाब मिल गए होंगे और इंशाल्लाह गाए बगाए ये सिलसिला रहेगा। और हम सर इस वक्त एक हमारे लेजेंडरी वेटनेरियन हैं जो कि बहुत से जो सेशंस हैं उनमें आके हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं। सर, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, देन आई विल क्लोज द शो। सर, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बात चीज़ कहना चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट जो वेटनेरियन जो यहाँ पे हैं, जो सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हैं अगर हम उनको अवेल करना चाहें। हमारे पास जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी कॉम्पिटेंट आदमी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, उनको आगे लाएं, उनको भेजें, एक दिन के लिए ट्रेनिंग दें, बजाय वो अपने दफ्तरों में बैठने के या वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठने के, वो बच्चों को थोड़ा सा काम दें। इसी तरह वाइल्ड लाइफ के अंदर जितने भी वेटनेरियन जो एक्सपीरियंस है, जिनका नॉलेज है, जिन्होंने काम किया है, वो जाके केस डिस्कस करें अपने बच्चों के साथ, एक दिन वो भी दें। इसी तरह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हैं, वो भी जाकर एक दिन ट्रेनिंग दे, बच्चों को जाकर समझाएं। इसी तरह फार्म पे जो लगे हैं, डेयरी फार्म पे लगे हैं, वो भी जाकर दें। पोल्ट्री फार्म पे जो लगे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस जाके बच्चों के साथ शेयर करें। जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमारे बच्चों का नॉलेज बढ़ेगा। और इसी तरह जो मैं चाहता हूँ जो पेट केयर के सेंटर के जितने भी है उसमें है, वो बच्चों को आने दें, उनको सोचने, उनको देखने दें, उनको ज्यादातर मौका दें, उनकी ड्यूटियां वहाँ पे लगाएं। 24 आवर वो खुला हुआ हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसके अंदर बच्चों को ज्यादा मौका दें सीखने का। यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी। बाकी थैंक you everyone. Thank you very much, sir. I guess it's a spot on fact that Pakistan is a land of opportunities. We just need right men for the right position. जो लोग जिनके पास एक्सपर्टीज हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, और उनका ये उनसे रिक्वेस्ट है जो सीनियर हजरात हैं, जो जिनके प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, कि आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुजू करें, वहाँ जाएं। ये और यंगस्टर्स का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें और उस नॉलेज को हासिल करने के लिए उनके पीछे जाएं और अपनी क्यूरियोसिटी शो करें। जब तक हम ये चीज़ शो नहीं करेंगे तो जो टू वे लर्निंग प्रोसेस है वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। तो इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। मैं अगेन डॉक्टर इजाज रशीद साहब का मशकूर हूँ कि ही हैज़ टेकन टाइम फ्रॉम हिज बिजी स्केड्यूल, और मैं आप लोगों को भी मशकूर हूँ कि वीकेंड वाले टाइम पे आपने इस जो ना लेट इवनिंग में आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। Inshallah, let's stay in touch, and we will be coming up with the new ideas, new things, and keep sharing so that at least one day we feel proud that we have changed something in the veterinary professional and we would work as a one family. Till then, जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे और इस कोविड की जो नई लहर है उससे आपको महफूज रखे, and please follow the SOPs. अस्सलाम वालेकुम।